بیماری کہاں پر ہوتی ہے بتائیں ذرا؟ ہاں جسم میں ہوتی ہے نا. کلام اگر سنے کوئی تو شفا بھی جسم کے اندر ہی. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ڈاکٹر نے شفا کی ڈرپ لگائی ہو؟ اس نے کہا یہ والی ڈرپ جو ہے نا یہ شفا کی طاقت دیتے سنے ہے نا. شفا کہاں پر ہے؟ شفا انسان کے اندر ہی ہے. آپ کی برکت آپ کے اندر ہی، بھرنے کی برکت آپ کے پاس، بلیسنگ ساری موجود ہے آپ کے پاس. کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ جب انسان کو خدا نے پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی اس سے کہا پھلو بڑھو. یعنی بھرنے کی برکت، پھل لانے کی برکت یہ انسان کے اندر پہلے سے موجود. انسان بیماریوں میں کب گیا؟ جب اس کی زندگی میں گناہ آیا، جب اس کی زندگی میں جب وہ باغ عدن سے باہر نکلا تب سے یہ کام شروع ہو گیا. اور کلام کہتا ہے اس کوڑی کو یہ کہا گیا، پھر کیا ہوا؟ پڑھیں ان کو جلدی سے. مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا. گمان سے ہم ساری شفا تک جان نہیں دیں گے. لوگوں کے اندر بھی آج گمان ہے، اور آج آن لائن کا گمان زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب فون پہ دعا کرتے ہیں، اچھا ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، گوائیاں بھی ہیں، لیکن جب ان کو آنے کے لیے یا کوئی سی پروسیجر میں سے چلنے کے لیے کہو تو وہ نہیں کرتے. اور نہیں کرتے اس لیے وہ شفا جو اس کو ملی ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی. پھر کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی دیر بعد وہ کال دوبارہ آ جاتی، وہ بیماری دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھ جاتی، یا وہ برکت دوبارہ خطرے میں آ جاتی. کلام کہتا ہے اس کو یہ گمان تھا. آج کا مسیح بھی کسی گمان میں ہے. آگے اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا. ہاں جی. اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. ہاں جی. کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ ہاں جی یہ بات اس نے کہا دریائے اردن کا مجھے بتا دیا ہے. میرے ملک کے اندر تو یہ دریا موجود ہے. وہ جو دریا ہے وہ نہ جس میں نہا کے ٹھیک ہو سکتا تھا، نہیں، اس میں سے کیا دریائے اردن میں نہا کے ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا. بات یہ ہے کہ اس پانی کے اندر کچھ نہیں ہے، دریائے اردن کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کلام کیا ہے، فرما برداری کس میں ہے اور کہا کس نے ہے. اگر تو وہ جو کہا گیا خدا کے نبی کے تھرو سے، خدا کے خادم کے تھرو سے، اگر تو وہ پورا کیا جا رہا ہے تو چیزوں میں یہ شفا موجود نہیں ہے. اس پانی کے اندر یہ شفا موجود نہیں ہے. لاسٹ کو ہم نے پڑھا تھا کہ کلیسیا کے بزرگ آئیں گے اور وہ تیل مل کر دعا کریں گے. تیل کے اندر شفا نہیں ہے، اصل میں شفا کلام کو پورا کرنے کے اندر ہے. ہاللیلویا. تیل سے رائنٹ کیا جاتا ہے لاس کو بسیٹا، اس کو مسح کیا جاتا ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے کہ اب یہ بیماری کے لیے نہیں بلکہ اب یہ شخص شفا کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. آگے کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ ہاں جی. سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. مڑ کے واپس چلا گیا، بہت غصے کے اندر. اس نے کہا بڑے قہر میں چلا گیا. 13ویں آیت. تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلام جس سے کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہیں زیادہ ایمان رکھتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی چھوٹی سی کہی گئی بات کسی کو بڑی سے بڑی برکت دلانے کی قدرت رکھتی ہے. یہ یہاں تک پہنچا ہے تو کس نے کہا تھا بتائیں؟ ابھی بتایا میں نے شروع میں، چھوٹی لڑکی نے کہا تھا. تو یہ کہاں پر پہنچ گیا؟ یہ سامریا میں پہنچ گیا، علیشا کے پاس پہنچ گیا. لیکن معاملہ یہ کہ بندہ بہت بڑا، اس کا قد کاٹ یعنی اس کی عہدہ، اس کی اتھارٹی بہت زیادہ تھی. اس نے کہا یہ تو آیا ہی نہیں. کلام کہتا ہے اس ملازم نے کہا، کیا کہا جی؟ 13ویں آیت. تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے، ہاں جی، اے ہمارے باپ، ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا، اگر وہ نبی اور دعا کرنے والا بندہ جو ہے اگر وہ بڑا کوئی کام کرنے کا حکم کہتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ تو کرنے تیار ہو گیا. یہ چھوٹا جا کام ہے، چھوٹا سا کام، چھوٹی سی لڑکی، چھوٹی سی بات، لیکن بیماری کتنی بڑی ہے.
हम में से किसी का भी ये तजर्बा नहीं है कि उस तरह से जो है वो किसी कोड़ी को, पता नहीं मुझे आप किसी से तजर्बा है या नहीं, किसी कोड़ी को आपने देखा है या नहीं देखा, लेकिन ये बीमारी बहुत बड़ी है। हालेलुया, आगे बढ़े। बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा बस वो ले तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो और जा, बात साफ हो जाए, उसकी बात पर यकीन कर। जब वो तुझे कोई बड़ा काम कहता तो वो भी तो तू करता, लेकिन ये तो छोटा सा काम है। आप बताएं चर्च में आना कितना बड़ा काम है? हैं जी बुजुर्गों, कोई है बड़ा काम? कोई टिकट लगी है, कोई पैसे लगे हैं, कोई जान लगा फीस देनी है, किसे चर्च इन्हें छाड़ दो है? नहीं है। कितना छोटा सा काम है। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, कितना बड़ा काम। लेकिन हम ये छोटा सा काम नहीं करते। लेकिन जो ये छोटे काम के इवज जो 5 कम से कम बरकतें हैं वो हम खो देंगे, लेकिन ये छोटा काम नहीं करेंगे। उन बरकतों के लिए दिन रात बड़े बड़े काम करेंगे। उन बरकतों को लेने के लिए दिन रात कलाम कहता है तेरा सुबह जल्दी उठना और रात को देर तक जागना, कहता किसी काम का नहीं। सुबह जल्दी उठ के तू पास जाना, जान तेरी नू, हाँ कितना बाजी, जान तेरी नू मिलता नहीं आराम किते, सुबह नू सोचे कुछ ते हुंदी शाम किते, है सही है ना? जान आराम है और कई बार सुनिया भी अक्सर अम्मा कहती अब मेरी जान के तो सकून ही नहीं, ऐसे आज हर एक इंसान का हाल, जान तेरी नू मिलता नहीं आराम किते, सुबह नू सोचे कुछ ते हुंदी शाम किते। सुबह नू कहंदा पाक साहब शाम नू सी उत्थे ही होवांगे, शामी किते लोग ने दस दिन ओते थे सा ओथे सा, सुबह नू सोचा सी। ऐसा नहीं, ये छोटा सा काम। हम आज जुम्मे को यहां पर हैं और हमारे ज़हन में अगला जुम्मा चल रहा है, लेकिन आज का मसीह ये समझता है शायद ये पास्टर के लिए आसान है। किसी भी किस्म कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना, उसके लिए आसान नहीं है बात करना या करवाना। वो भी उन सारी मुश्किलात फर्क हो सकती हैं, यानी जिसके पास छत है उसके लिए मुश्किल नहीं है, हमारे लिए है, लेकिन उसके लिए और हो सकती है, उसके लिए और टारगेट हो सकता है। हालेलुया। कलाम कहता है छोटा सा काम तू कर ले, इतनी बड़ी तेरी बीमारी है, इलाके से तेरी इज्जत है, महल्ले से तेरी इज्जत है, मुल्क से तेरी इज्जत है, बादशाह तेरी गल मानता है, लेकिन बादशाह जो खलोंदा होना है ते कहंदा होना है नुमान थोड़ा दूर करके खड़ो, गाने की ठीक है, इज्जत मेरी करना ए बहुत अच्छा बंदा है, जंग जांदा लड़न ते जिती जाती है, बड़ा जबरदस्त सूरमा है, नौकरी है अपनी जगह पे, लेकिन कोई नहीं है इन्हों मेरे तो दूर खड़ा हो, गल मैं नहीं मनांगा पर ये लागे मैं बैठ नहीं सकता, मुझे लगता है होंदा होया, क्योंकि कोर्ट वाले शख्स के नजदीक कोई इंसान जल्दी जा नहीं सकता। और इसीलिए अलीशा भी इसके पास नहीं गया। अलीशा को पता था कि बनी इस्राइल के अंदर कलाम के अंदर ये मना है, कोड़ियां हाथ सिर्फ यीशु ही ला सकता है, कुछ नहीं होता। हालेलुया। कोड़ी के पास जाना, कोड़ी के बारे में लिखा उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, और ये तो अंदर आ गया, अब उसको शहर से बाहर निकालना भी जरूरी है, इसलिए उसने कहा जा दरिया यरदन में जा, उत्थे जाके गोते मार, इतने शहर की मुसीबत कह रही है, साढ़े शहर के अंदर बाढ़ आया सी ते कोड़ियां बाहर काट दे। लेकिन नौमान नूं ना पता कलाम दा, वो कहंदा सी मेरे ते हाथ रखो, वो आंदा सी हाथ रख के ते फिर हो इधर उधर। अरे बाबा ने कलाम भी तो देखना ना कि नहीं, वो कलाम को पूरा नहीं करेगा, तुझे शिफा से मतलब है या तुझे हाथ से मतलब है? उसने कहा तू जाके ये काम कर, जाकर दरिया यरदन में क्या मार, 7 गोते मार पड़े भाई। बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए, कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने पर, मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, पहला के लोग भी अच्छे सन, गल मान लेंगे सन किसी, वो छोटी जी लड़की की गल सुन के उन्हें इग्नोर नहीं की। साढ़े लोग तो इग्नोर ही बहुत करते हैं, बस वो साड़ा बड़ा ईमान है, पता नहीं केड़ा ईमान है, सुनकर वो काम करना ही नहीं है जिसका कलाम कह रहा है। उसका ईमान देखे, यकीन देखे, उस छोटी लड़की की बात मानी, पहुंच गया, लेकिन मेरे गुस्सा आ गया, फिर भी गुस्से को भी साइड पे कर दिया दूसरे मुलाजिम की बात सुनकर, और साइड पे करके उसने कहा ठीक है चलो ये कहना देंगे कारी लेने आप किया उसने बड़े भाई।
तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में हालेलुया। 7 गोते मारे। सारे कहें हालेलुया। हालेलुया। हाथों को लहरा कर कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। आप सब खुश हैं, ऐसे कहें आमीन। आमीन। जोरदार कहें आमीन। आमीन। कलाम कहता है उसने मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक, ये खुदा के कहने के मुताबिक, मर्दे खुदा से खुदा बातें करता है, वो आगे कलाम करता है, मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक किया। आगे उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक हाँ जी यरदन में 7 गोते यरदन मारे। में 6 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, बल्कि कितने गोते मारे? 7 गोते मारे। और कलाम कहता है नबी ने कितने कहा था? 7 ही कहा था। पूरी बात उसने पूरी की। कलाम कहता उसने 7 गोते मारे। फिर क्या हुआ? और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। सब कहें हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। लड़की के दिल में क्या था? काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता तो उसको क्या करता? छुपा देता। मुलाजिम क्या कहता है? थोड़ा सा छोटा सा काम उसने बोला, ये करके देख ले तो ठीक हो जाएगा। वो भी मान गया। खुदा दा बंदा ने जाके पहला गोता मारा होना, वो नौकरा वाल वेंदा होना, मैंने कुछ भी नहीं होया। क्यों बोला? देन ऐसी हो सकता है पहले गोते से हाथ ठीक हो, दूसरे गोते से हो सकता है दूसरा हाथ ठीक हो, तीसरे गोते से पैर ठीक हो। वो शायद हो सकता है इनकी को तरकीब बना के बैठा है, जेड़ा पहली तरतीब बना के बैठा जो अभी भी बैठा होगा, लेकिन पहली दफा क्या होना थले उत्ते उठ के बैठा होना, कुछ भी नहीं होया। फिर क्या होना? कुछ भी नहीं। फिर क्या? कुछ भी नहीं। करते करते 6 लगाए होंगे। और मुझे लगता है उन मुलाजमों की तरफ बड़े गुस्से से देखा होगा, ये गुस्से वाला बंदा कि तुझे मैंने क्या सिया होया, हाले तक कुछ भी नहीं। 6 गोते ना मार चुके हैं, लेकिन गुस्से ना ईमान है, ये जिस तरह मैंने किया होगा। 7वां गोता जब मार कर निकला तो कलाम कहता उसका बदन कैसे हो गया? हालेलुया। उसका बदन बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। कलाम कहता है नबी ने कहा था तू पाक और साफ हो जाएगा। और नबी किसका है? खुदा का। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि जब कोई बंदा, कोई शख्स आपसे कुछ करने के लिए कहता है तो वो सिर्फ कहकर सो नहीं जाता, अलीशा जाकर सो नहीं गया होगा, बल्कि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जब वो उसके घर से निकला होगा तो मर्दे खुदा, मर्दे दुआ, अलीशा दुआ में बैठ गया होगा। वो बैठ गया होगा और वो खुदा की हजूरी में होगा कि खुदावन अपने बंदा के कहने के मुताबिक ऐसा करना। जब नमान वहां पर गोते मार रहा हो तो खुदावन उस दरियाए यरदन के पानी के अंदर तेरी कुदरत शामिल हो जाए। और यही वो बात थी जिसको उसने यकीन किया, माना और खुदा ने उसे पाक और साफ कर दिया। सब कहेंगे हालेलुया। सीधा सीधा फार्मूला है कि जब हम प्रोसीजर में से गुजर कर चलते हैं, खुदा के लोगों के खुदा की बात मानते हैं, खुदा हमें वो बरकत देने की कुदरत रखता है। सब कहें आमीन। हालेलुया। आगे लिखा फिर वो अपनी चलो के साथ सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख अब मैंने जान लिया है कि इसराइल को छोड़ और कहीं रोए जमीन पर कोई खुदा नहीं। किसका नाम ऊंचा हुआ? कहें खुदा का। किसका नाम ऊंचा हुआ? खुदा का। इसलिए अब कर्म फरमा कि अपने खादम का हदिया कबूल कर। वो हदिया नजराने जो लेकर आया था वो उसको देना चाहता था, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर करना चाहता हूँ, जब ये वापस गया होगा तो कितनी खुशी हुई होगी या नहीं? वो भाई छोटा मोटा बंदा, थोड़ी सिपा सलार्स, आज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिपा सलार देखे ना, अपने रथ के साथ आया, प्रोटोकॉल के साथ आया। जब ये वापस गया होगा कितनी खुशी हुई होगी। और मैनू लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि ये उस लड़की को उसी रथ पर बिठाकर वापस उसके घर छोड़ गया होगा। क्या यकीन है? मैंने कहना सारी उम्र गुजर गई यदि कोर्स, एक छोटी सी बच्ची ने गवाही दी तो कोर्ट क्यों? ये कोर्ट से निकला है कि उसको आजाद नहीं किया होगा। अरे किया होगा। आपकी गवाही आपको गुलामी से आजाद कर सकती है।